ਵਾਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੁੱਕੀ ਆ ਗੈਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਰੋੜ ਸਵਾ ਜਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈਵਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ 3rd ਕਲਾਸ ਇੱਟ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਇਲੇ अनाड़ी बंदे ने ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ इट ਨੂੰ ट्राई करने वास्ते गटरों ਨੂੰ पानी लाने वास्ते पैप तक नहीं है। कि जो हमारे मेहमान आते हैं इस महल्ले के अंदर वो कहते हैं कि आप इतने गंदे महल्ले के अंदर रह रहे हैं और ना ही पानी की निकासी का कोई इंतजाम है। जब बारिश होती है तो पानी इधर जो होता है वो गोटे गोटे खड़ा हो जाता है। ये मसला बना हुआ है कि पैदल गुजरना भी है महल्ला मुगल कॉलोनी से मुश्किल हो चुका है। सालक हुसैन साहब, चौधरी शाफी हुसैन साहब और इनके जितने जो सेक्रेटरी हैं वो इधर आए और देखें। डीसी साहिबा खुद यहाँ पर विज़िट करें और आकर देखें कि यहाँ जब नमाज का टाइम होता है, बच्चों के स्कूल गोइंग का टाइम होता है तो काफ़ी मुश्किलात दरपेश है। कौम का पैसा है, इस कौम के पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। मैं हूं आपका होस्ट सैयद एतजाज हैदर शाह और आप देख रहे हैं SBI न्यूज़। इस वक्त हम मेन शहराह रहमान शहीद रोड उसके साथ शादमान कॉलोनी की अकब में एक मोहल्ला आता है, मोहल्ला मुगल कॉलोनी। सैलाब या पानी या कोई भी मसला होता था तो ये मोहल्ला मुतासर होता था। तो इनसे जानते हैं इनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਮੁਗਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫਤ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿ ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਰਨ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ 1.5 ਫੁੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਲੈਂਡ ਪੱਟੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦਰਮ ਲਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੁੱਕੀ ਆ ਗੈਪ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਾਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਭੇਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਰੋੜ ਸਵਾ ਜਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈਵਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਮੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ 11 ਵਜਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਚੱਲੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ 3rd ਕਲਾਸ ਇੱਟ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਪਿੱਲੀ ਇੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਇਲੇ ਅਨਾੜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਟ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਫ ਟਾਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 3rd ਕਲਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ। 4-5 ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਫ ਟਾਇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬੱਜਰ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਉਹ ਹੁਣੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਜਰੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਫ ਟਾਇਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨੱਕ ਸਮਾਲ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ। मैं DCO साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक ईमानदार अफसर हैं उधर, महब वतन है वो, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे मल्ला मुगल कॉलोनी में आए, खुद विजिट करें और इसके जो काम हो रहा है, ये तरक्याती हो रहा है, इसको खुद अपनी निगरानी में कराएं। सर्दी में के मौसम के अंदर काम शुरू हुआ था और अब ये गर्मी मई का महीना आ गया है। 3-4 महीने हो चुके हैं और हमारे जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो रास्ता पैदल गुजरते हैं, पैदल गुजरने वालों के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये बाकी जो हमारे मेहमान आते हैं इस महल्ले के अंदर वो कहते हैं कि आप इतने गंदे महल्ले के अंदर रह रहे हैं। ये गुजरात का महल्ला है, महल्ला मुगल कॉलोनी है और ये सारे मुगल कॉलोनी की गलियां जो हैं ये बनने वाली हैं और ना ही पानी की निकासी का कोई इंतजाम है। जब बारिश होती है तो पानी इधर जो होता है वो गोटे गोटे खड़ा हो जाता है और ये सारे लोग जो पानी के अंदर से गुजरते हैं, फिर कुछ बच्चे गिरते हैं, कुछ मोटरसाइकिलें गिरती हैं और ये हमारा माली और जानी नुकसान होता है। तो हमारी ये नूरुल कुरैशी साहबा से, डिप्टी कमिश्नर साहबा से और बाकी जितने मुतलका ऑफिसर हैं उनसे गुजारिश है और जो हमारे गुजरात के जो चौधरी साहिबान हैं, चौधरी शाफी हुसैन साहब, चौधरी सालक हुसैन साहब, उनसे गुजारिश है कि इस महल्ला मुगल कॉलोनी के जो काम है
उसका फिलफौर नोटिस लिया जाए और इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए कि जो मटीरियल इस्तेमाल रहा है वो भी इंतहाई नाकस मटीरियल है और ये ईंटें और ये बजरी और ये सीमेंट ये जो है इस काम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि ये इसका लेवल ही जो है वो ख़राब हो चुका है। हमारे इसको लेवल के मुताबिक काम करना चाहिए था और इसकी लागत जो है तखमीना लागत वो करोड़ सवा करोड़ है, जो इससे बढ़कर 3 4 या 5 करोड़ तक पहुंच चुकी है, लेकिन किसी बंदे को कोई फ़ायदा नहीं। अब ये मसला बना हुआ है कि पैदल गुजरना भी है मोहल्ला मुगल कॉलोनी से मुश्किल हो चुका है। लिहाजा हमारी इनसे गुजारिश है जनाब जो हमारे चौधरी साहिबान हैं, चौधरी सालक हुसैन साहब, चौधरी शाफी हुसैन साहब और इनके जितने जो सेक्रेटरी हैं वो इधर आएँ और देखें कि वाकई हमारी बात सही है, इसके अंदर वजन है या नहीं है, और हमारा ये जो काम है, हमारी गलियां, हमारी गुजरगाह है, इसको सही किया जाए। यहाँ ज़्यादा लेबर के लोग बसते हैं जो सर्विस में और दूसरे पंजाब में काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डीसी साहिबा खुद यहाँ पर विज़िट करें और जो ज़िम्मेदारान ऑफिसर हैं, इदारे हैं, वो विज़िट करें और आकर देखें कि यहाँ जब नमाज का टाइम होता है, बच्चों के स्कूल गोइंग का टाइम होता है, तो काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। तो खुदारा कौम का पैसा है, इस कौम के पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। अब ये जो लास्ट में जा रहा है मज़दूरों के या इंजीनियर की लापरवाही की वजह से, तो ये मुल्क का भी नुकसान है, कौम का भी नुकसान है। मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहिबा से, हुकूमत पंजाब से कि प्रॉपरली यहाँ एक अच्छे तरीके से काम किया जाए। अगर कोई इमरजेंसी बन जाती है तो 112 जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकती, और ये जो 1.25 करोड़ का प्रोजेक्ट था उसको बढ़ाकर 3 करोड़ के प्रोजेक्ट में ले गए हैं। और ये कौन कर रहा है, इसकी तहकीकात कौन करेगा? जल्द नोटिस लिया जाए और ईद उल ज़ुहा से पहले इस रास्ते को क्लियर किया जाए ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो आसानी से ज़िंदगी बसर कर सके। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। सैयद एतजाज़ हैदर शाह, SBI न्यूज़, गुजरात। बड़ी ईद बड़ी सेल। इस बड़ी ईद अपनों के लिए जी भरकर शॉपिंग करें और फायदा उठाएं सेठी स्टोर की तरफ से। लेडीज, किड्स और जेंट्स की नई ईद कलेक्शन पर 50% तक के बड़े डिस्काउंट का। आज ही विजिट करें अपने करीबी सेठी स्टोर पर, क्योंकि ईद की खुशियाँ अब और भी खास हैं बड़े डिस्काउंट की सूरत में। बड़ी ईद बड़ी सेल। सेठीज, अ कंप्लीट फैमिली स्टोर।